اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے تدریس زبان کے اصول کو دیکھا تھا۔ تو ہمارا ٹاپک کیا تھا کہ تدریس زبان کے اصول اور طریقے۔ تو ہم نے کیا دیکھا تھا؟ تدریس زبان کے اصول۔ تو تدریس زبان کا اصول کیا، اس کو دیکھا تھا۔ تو اصول دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ جو پڑھانے کا جو کیا کیا قاعدے قانون اصول ہونا چاہیے، وہ ایک ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا اصول ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کے طریقے۔ جب اصول سیکھ لیے تب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد اس میں کیا کیا طریقے کا مطلب کہ آپ اصول سیکھ گئے ہیں، اب آپ کلاس روم میں آ گئے ہیں، اب آپ کو پڑھانا ہے بچوں کو۔ تو بچوں کو آپ کس طریقے سے پڑھائیں گے کہ بچے اچھے سے سیکھیں گے، بچے کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، تو وہ طریقہ آپ کو اپنانا ہے۔ تو اس والے ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو طریقہ ہے تدریس کے، پڑھانے کا جو طریقہ ہے اسی کو سیکھنا ہے۔ تو تدریس کا جو طریقہ ہے وہ بہت سارے ہیں، لیکن اس میں سے جو خاص طریقہ ہے اسی میں ہم بات کریں گے، اسی کے بارے میں۔ تو ایک طریقہ اس میں ہے کہ کھیل کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے کہانی کا طریقہ، سوال جواب کا طریقہ، لیکچر یا تقریر کا طریقہ، اداکاری یا ڈرامائی طریقہ، بحث و مباحثہ کا طریقہ، اور لاسٹ میں ہے دو اور طریقہ، استقرائی طریقہ اور استخراجی طریقہ۔ تو آئیے اب ہم ویڈیو کو تفصیل سے شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھیل کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں ہے کہ آپ کھیل سے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جیسے ایک ٹیچر جب کلاس روم میں آتا ہے تو بچوں کو دیکھتا ہے کہ بچے کا موڈ کیسا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں بچے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جتنے بھی طریقے بتائے جیسے کھیل کا طریقہ، کہانی کا طریقہ، سوال جواب کا طریقہ، لیکچر یا تقریر کا طریقہ، اداکاری طریقہ یا بحث و مباحثہ کا طریقہ، استقرائی یا استخراجی طریقہ۔ تو آپ کلاس روم میں آئیے اور دیکھیے کہ بچے کیا چاہتے ہیں۔ اگر بچے یہاں کھیل کے موڈ میں ہیں تو آپ طریقہ اپنائیے کھیل کا طریقہ۔ تو کھیل کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں۔ چونکہ تعلیم کے مختلف سطحوں پر طلباء کی ذہنی صلاحیت، دلچسپیاں، رجحان وغیرہ الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے تدریسی فعل انجام دینے کے لیے ایک معلم مختلف طریقہ کار استعمال کرتا ہے۔ ابتدائی جماعت سے لے کر اعلیٰ جماعت تک تدریس کے لیے مختلف طریقہ کار کیے جاتے ہیں، طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں، وہ حسب ذیل ہے، ٹھیک ہے، وہ حسب ذیل ہے۔ تو جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے کھیل کا طریقہ، ٹھیک ہے، کھیل کا طریقہ۔ تو کھیل کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو کلاس روم میں سکھانا ہے بچوں کو، تو بچے کیسے سیکھیں گے اس چیز کو آپ کو کرنا ہے، آپ اپنے حساب سے آپ کو کرنا ہے کہ جیسے بچے کھیل میں دلچسپی لے رہے ہیں تو آپ کو کھیل کا طریقہ کو اپنانا پڑے گا۔ تو دیکھیے کہ مادری زبان کے تدریس میں کھیل کا طریقہ کافی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ کھیل بچوں کے فطرت میں شامل رہتا ہے اور اس سے وہ اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں۔ بچوں کے کھیل زیادہ تر خیالی ہوتے ہیں، وہ کبھی مکان بناتا ہے، اب دیکھے ہوں گے بچپن میں کہ چھوٹے بچے کھیلتے ہیں تو چھوٹا گھر بناتے ہیں یا اپنا کچھ بناتے ہیں۔ تو بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ بچہ اگر کچھ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بچے کریٹیو مائنڈ ہے، کچھ سوچ رہا ہے، کچھ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں کبھی ریل گاڑی بناتا ہے، کبھی بڑے آدمیوں کی نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی بڑے آدمیوں کی نقل کرتا ہے۔ ابتدا میں بچوں کے کھیل انفرادی ہوتے ہیں جو بعد میں معاشرتی نوعیت اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ تو کھیل کا طریقہ اس لیے اس میں کہا گیا ہے کہ کھیل میں ہوتا ہے کہ بچے کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی طریقہ سیکھتے ہیں۔ بچے تو پڑھائی تو کرتے ہی ہیں، لیکن جو سماج میں کیسے رہنا ہے، سماج میں رہنے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں، کیونکہ کھیل میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں، کئی لوگ ایک ساتھ مل کے کھیلتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ بچے بہت ساری چیزوں کو بناتا ہے، اس کے بعد اسی کے ذریعے سے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے ایک ٹیچر کو بھی چاہیے کہ جو بچے جس طرح سے بچے کی فطرت ہے، بچے کو کھیلنا پسند ہے، تو ٹیچر بھی کھیل کا طریقے کے ذریعے سے بچوں کو پڑھائے اور سکھائے، ٹھیک ہے۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں بچوں کی ان فطری خواہشات اور کھیل کی خواہش کو اگر تعلیم کی بنیاد بنا لیا جائے تو بچے تعلیم میں بھی اتنی ہی دلچسپی لیں گے جتنے کہ وہ کھیل کود اور دوسری خواہشات پوری کرنے کے لیے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
इस उसूल के पेश नज़र बहुत से माहिर तालीम ने बच्चों की दिलचस्पियों और खेल कूद को कुदरती शौक़ को तालीम का ज़रिया बनाया है। यहाँ देखिए कि मादरी ज़बान को पढ़ाने के सिलसिले में खेल के तरीके को कई सूरतों से काम में लाया जा सकता है। देखिए मसलन एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि अल्फाज के खेल, ठीक है, अल्फाज के खेल, जुमलों के खेल, कहानियाँ, तस्वीर बनाना, ड्रामों में हिस्सा लेना, लिबास वगैरह तैयार करना, ठीक है, लिबास की तैयारी करना वगैरह। तो इस तरह जो बच्चा इस तरह जो चीज़ बच्चे को पढ़ाई जाएगी वह उसमें उतनी ही दिलचस्पी लेगा जितनी खेल में लेता है, ठीक है। तो खेल में जिस तरह से बच्चे दिलचस्पी लेते हैं, बच्चे के फितरत में खेल शामिल है, इसलिए कहा गया कि जब टीचर पढ़ाए तो खेल का तरीका को अपनाए ताकि बच्चे उससे अच्छे से सीख सकें। आइए अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। जो दूसरा तरीका भी बहुत ही दिलचस्प है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है कहानी का तरीका, ठीक है, कहानी का तरीका। तो कहानी का तरीका क्या है? यह तरीका कमरा जमात में मुख्तलिफ़ मज़ामीन को पढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। मुअल्लिम असबाक को दिलचस्प और बेहतर तरीके से पेश करने के लिए कहानी के तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब, कहानी के तरीका का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि छोटे जो बच्चे होते हैं उसको कहानी सुनना बहुत पसंद आता है। आप देखिए घर पे कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी अम्मी से, दादी से, अब्बू से कहानी कहने के लिए कहते हैं और वो सुनते हैं, बहुत गौर से सुनते हैं। तो आप क्लासरूम में गए और जाकर अचानक पढ़ाने लगे तो बच्चे उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो आप जो सबक पढ़ाने जा रहे हैं उसी के हिसाब से पहले कहानी बोलना शुरू कर दीजिए उस पर, ठीक है, कहानी बोलिए उसको, बच्चे को। तो बच्चे कहानी सुनते आपकी पढ़ाई की तरफ भी वो ध्यान देने लगेंगे और इस तरह से वो पढ़ने लगेंगे। तो कहानी के ज़रिए से आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो सबक की कामयाबी का दारो मदार मुअल्लिम के लियाकत मुनहसर होता है कि वह कहानी को किस तरह से पेश कर रहा है, वो कहानी को किस तरह से पेश कर रहा है। तो यहाँ देखिए कि छोटी जमातों के बच्चों के लिए यह तरीका बहुत मुफीद समझा जाता है, क्योंकि बच्चों को कहानियों से बहुत शौक़ होता है। इस तरीक़े तदरीस का ताल्लुक़ बच्चों की नफ्सियात से है। उसके ज़रिए खुश्क मज़मून की तदरीस में भी दिलचस्पी पैदा की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें होना चाहिए मुअल्लिम के अंदर जो महारत होनी चाहिए, जो खुसूसियत होनी चाहिए, उसके बारे में अब बताई जा रही है कि मुअल्लिम को किस्सा सुनाने में महारत हो, ठीक है। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से कहानी में दिलचस्पी पैदा हो। बच्चों की इस्तेदाद और उम्र के लिहाज से कहानी का इंतखाब होना चाहिए। तो इसमें कहानी कोई भी मतलब बहुत ही बड़ी कहानी ना पेश किया जाए। बच्चे के लियाकत के हिसाब से, बच्चे जो कहानी समझ सकते हैं उसी के हिसाब से कहानी का मुंतखब करना चाहिए, और वही सब कहानी पेश करना चाहिए जो बच्चे समझ सकते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा तख़य्युल और ख़यालात ये सब पेश करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। मुअल्लिम खुद कहानी सुनाने के बाद तलबा से भी उस कहानी को सुने। तो एक मुअल्लिम जब कोई कहानी सुनाते हैं बच्चे को, तो बच्चे बहुत गौर से सुनते हैं, और उसको अगर बोलिए सुनाने के लिए तो वो सुनाता भी है। तो जब बच्चे सुनाए तो आपको सुनना भी है। तो इससे होगा कि बच्चे को बोलने की जो सलाहियत है वो बच्चा बोलना सीख जाएगा। बच्चे बोलने के अंदर जो बोलने की जो सलाहियत है उसको सीख जाएगा। तो तलबा को कहानी लिखने और सुनाने का मौका देना चाहिए, ठीक है, मौका देना चाहिए। तो यहाँ मौका की बात देख रहे हैं आप। तो आप जहाँ भी सवाल में देखेंगे कि बच्चों को मौका फ़राहम करना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो जहाँ भी मौका लफ्ज़ आए उस वाले ऑप्शन को आप ज़रूर उसको चुनिएगा, क्योंकि यही वाला ऑप्शन जो होता है वो सही होता है, जहाँ मौका दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। ताकि यहाँ क्या है कि तलबा को कहानी लिखने और सुनाने का मौका देना चाहिए, ठीक है, ताकि उनमें ख़यालात को पेश करने की कुदरत पैदा हो और उनके तख़य्युल की परवरिश हो। तो इसमें दो फ़ायदा बताया कि कहानी के ज़रिए से अगर आप करेंगे तो कहानी बच्चे सुनेंगे, उसको जब बोलेंगे तो उसके जो ख़यालात उसके ख़यालात हैं उसको पेश करने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात है कि वो तख़य्युल की भी परवरिश होगी। बच्चा जो होगा वो क्रिएटिव होगा, बच्चों के अंदर जो सोचने की सलाहियत है उसको फ़रोग़ मिलेगा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं अगला तरीका। जो अगला तरीका था वो था सवाल जवाब का तरीका, ठीक है। तो सवाल जवाब का जो तरीका है ये भी बहुत बेहतरीन तरीका समझा जाता है इसमें कि यहाँ लिखा है कि तालीम का बुनियादी मकसद
फ़र्द की नशोनुमा करना है और ज़हनी नशोनुमा का मौसर वसीला सवालात हैं। बहुत कम उस्ताद सवालात की अहमियत को पूरी तरह सराह पाते हैं। ठीक है। सीखने के किसी मौजू तस्वीर के लिए यह बुनियादी हैसियत रखता है कि सवाल बच्चे की ज़हनी ज़िंदगी के लिए पहला महरिक होता है। तो सवाल जवाब का जो तरीका है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि सवाल जवाब के तरीक़े को बेहतर इसलिए कहा गया कि जो बुनियादी जो चीज़ है, जैसे सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है। तो सुनना और बोलना जो 2 सलाहियत है, जैसे आप किसी से सवाल पूछेंगे तो बच्चे उसको सुनेंगे सवाल को और उसको समझेंगे, तो उससे होगा कि वो सुनने की जो सलाहियत है उसके अंदर, सुनने का जो सलाहियत है वो फ़रोग़ होगा उसका, सुनने की सलाहियत को। उसके बाद जब वो जवाब देगा तो बोलने की सलाहियत का भी फ़रोग़ होगा उसके सामने। तो इसलिए कहा गया कि सवाल जवाब का तरीका भी जो है सबसे बेस्ट है, सवाल और जवाब का तरीका। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए कि लेक्चर या तकरीर का तरीका। ठीक है। लेक्चर या तकरीरी तरीका। तो लेक्चर और तकरीरी तरीका जो है, इसमें कहते हैं कि तालीमी इदारों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तदरीसी तरीका जो है लेक्चर या तकरीरी तरीका है। और यह तरीका तकरीबन तमाम मज़ामीन की तदरीस में मकबूल है। उसके ज़रिए से उस्ताद किसी ख़ास मौजू या मसले पर एक मुनज़्ज़म और तरबियत शुदा नफ्स मज़मून का ज़बानी इजहार करता है और तलबा खामोशी के साथ मुअल्लिम की बात को समाअत करते हैं। इसलिए लेक्चर ऐसा तदरीसी तरीका है जिसके ज़रिए बैक वक्त पूरी जमात को पढ़ाया जा सकता है। तो लेक्चर और तदरीस का तरीका भी, इसको भी बहुत अच्छा समझा जाता है, लेकिन छोटे जमात के लिए लेक्चर वाला तरीका को अच्छा नहीं समझा जाता है। ये भी एक तरीका है पढ़ाने का कि एक टीचर आ रहे हैं और बोलते जा रहे हैं और स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं, तो इसमें होता है कि एक तरफ़ा की पढ़ाई हो जाती है। टीचर सिर्फ बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो एक तरफ़ा पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। दोनों स्टूडेंट और तलबा जो है और उस्ताद है जो टीचर है, दोनों एक्टिव होना चाहिए। तो खेल के तरीके में या सवाल जवाब के तरीके में या ड्रामाई तरीके में, ये सब में होता है कि बच्चे एक्टिव होते हैं, और लेक्चर वाले तरीके में बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है अदाकारी या ड्रामाई तरीका। तो अदाकारी या ड्रामा तरीका जो है कि दर्स व तदरीस में अदाकारी या ड्रामाई तरीका को काफ़ी अहमियत है। इस तरीक़ा से तालिब इल्मों में अपने ख़यालात, जज्बात व एहसासात को बयान करने की तरबियत दी जाती है। ड्रामे में जिस्मानी हरकत और इजहार जज्बात की काफ़ी अहमियत है। अदाकारी में मुकालमा एक अहम जुज़ है। जिस तरह एक अदाकार स्टेज पर अपने अदाकारी से नाज़रीन को मशहूर कर लेता है, इसी तरह मुअल्लिम को भी चाहिए कि किसी ख़ास मज़मून को पढ़ाते हुए अदाकारी को अहमियत दे। ठीक है। अमल के ज़रिए इजहार ख़याल और मुख्तलिफ़ जज्बात को बयान करने के लिए ड्रामा को इस्तेमाल किया जाता है। ड्रामाई अंदाज़ पैदा करके सबक को इंतहाई दिलचस्प और तफरीह बनाया जा सकता है। ठीक है। आइए अब हम इसके बाद देखते हैं अगला तरीका क्या है। ये आपके सामने एक तरीका है इस्तिक़राई तरीका। तो ये जो तरीका है टीचिंग में, तदरीस में सबसे अहम तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका इस्तिक़राई तरीका ही है। तो इस्तिक़राई तरीके के बारे में हम देखते हैं कि तदरीस का वह तरीका जिसके बदौलत तलबा मुतअद्दिद वाक़यात, हक़ाइक़ या मिसालों का तजज़िया करके बराह रास्त किसी नतीजे पर पहुँचते और कोई उसूल ज़ाब्ता या कुल्लिया अख़ज़ करते हैं, इस्तिक़राई तरीका कहलाता है। ठीक है। तो इसकी तो ये तारीफ़ हो गई कि इस्तिक़राई तरीका किसको कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझे नहीं हैं। तो इसको अगर एक मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करें तो आप लोग आसानी से समझ लेंगे। तो इस्तिक़राई तरीका उसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आप एक उस्ताद हैं, आप टीचर हैं और क्लास में गए और क्लास में आप बच्चों को इस्म के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। किसके बारे में? इस्म के बारे में, नाउन के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो आपको कैसे पढ़ाएंगे
जो वो इस्तक़राई तरीक़ा को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे कि वो नाउन को बेहतरीन तरीके से बच्चे समझ जाए, ठीक है। तो नाउन को आप पढ़ाएंगे तो इस्तक़राई तरीके से पढ़ाइए, तो इस तरह से पढ़ाइए इस्तक़राई तरीके से कि बच्चों से पहले पूछिए कि बच्चों बताओ ये क्या है। अब ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बच्चों से पूछ लिए कि बच्चे क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। एक मिनट, बच्चे क्या बताएंगे कि ये बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों से पूछिए कि बच्चे बताओ आप कहाँ रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे अपनी जगह के बारे में बताएंगे। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं बनारस को, ठीक है। बच्चे बताएंगे हम बनारस में रहते हैं। उसके बाद फिर बच्चों से पूछिए कि आपका नाम क्या है, तो वो बच्चे बताएंगे, कोई एक नाम बताएंगे, जैसे ज़ैद बता दिए, ज़ैद, ठीक है। बच्चे ज़ैद बता दिए अपना नाम। इसी तरह से पूछिए कि बच्चे अगर आपके कोई चीज़ ले कोई, तो आपके अंदर कैसी फीलिंग आती है, तो बच्चा बताएगा कि हमें गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्सा आता है। तो अब यहाँ देखिए, तो अब बच्चों से पूछिए कि ये बोर्ड क्या है, ठीक है, बोर्ड क्या है, तो बच्चे बताएंगे ये चीज़ है कोई, ठीक है, ये चीज़ है। फिर बोले बनारस क्या है, तो एक जगह है, ठीक है, बनारस क्या है, एक जगह है। और आप क्या हैं, आप एक इंसान है, जैसे ज़ैद एक इंसान है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा क्या है, एहसास है, ठीक है, गुस्सा एहसास है, एहसास हो गया। तो अब इसी चीज़ को जोड़िए इसको, ठीक है, कि देखिए यहाँ आप लिख दिए किसी लिख दिए, यहाँ किसी लिख दिए। तो अब इसकी तारीफ़ बोलिए, देखिए कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी चीज़, ठीक है, किसी चीज़, जगह, इंसान या एहसास को इस्म कहते हैं, ठीक है। हो गई तारीफ़। तो पहले मिसाल, उसके बाद फिर तारीफ़। तो अब बच्चे कभी भी इसका डेफिनेशन को नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप बच्चों को इस तरह से बोलते कि ना, इस्म किसे कहते हैं, तो इस्म कहते हैं किसी चीज़, जगह, इंसान या एहसास को इस्म कहते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, बनारस, ज़ैद, गुस्सा, तो इसको इस्म कहते हैं। तो बच्चे इस तरह से याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस्तक़राई तरीक़ा को समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक लास्ट तरीक़ा जो है वो है इस्तिखराजी तरीक़ा, ठीक है, इस्तिखराजी तरीक़ा। तो देखिए यह तरीक़ा इस्तिक़राई की ज़िद है, यह तरीक़ा इस्तिक़राई की ज़िद है। उसमें मुअल्लिम खुद ही तलबा को कोई आम उसूल, ज़ाब्ता या कुल्लिया बता देता है, फिर मखसूस मिसालों से उसकी वजाहत करता है। तलबा मुअल्लिम पर एतमाद तस्लीम कर लेते हैं। मज़ीद तस्दीक के लिए बाद में वह उन मिसालों पर उस कुल्लिया को मंतिक के और मुंतबिक करने का मौका देता है, ठीक है, मुंतबिक करने का मौका देता है। मसलन तो इस तरीके का मिसाल आप इसी से समझ सकते हैं कि जैसे हमने इस्तिक़राई तरीक़ा के बारे में बताया था, ठीक है। तो इस्तिख़राजी तरीक़ा उसी की ज़िद है। तो जैसे टीचर क्लासरूम में आया और इस्म के बारे में पढ़ाना है, तो बता दिए कि किसी चीज़, जगह, इंसान या एहसास को इस्म कहते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, बनारस, ज़ैद, गुस्सा। तो बच्चे इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन ये फिर हो सकता है कि बाद में भूल जाए। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे।